नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शाहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पत्रकारों पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, कुछ पत्रकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की तरह करते हैं काम। तेलंगाना के आदिलाबाद में सड़क हादसा, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, टेक्सास में भारत की राजनीतिक और भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव, विनेश फोगाट ने चुनाव अभियान की शुरुआत की। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविंद्र भारती में जवाहरलाल नेहरू हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यक्रम में पत्रकारों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने टिप्पणी की कि कुछ पत्रकारों का व्यवहार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के जैसा है और उन्हें अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जर्नलिस्ट सोसाइटी के पदाधिकारियों को पेट बशीराबाद में 35 एकड़ भूमि आवंटन दस्तावेज भी सौंपे। ఈ మార్పును మీరు గుర్తించండి నేను భావిస్తున్నా। కానీ మార్పు సమాజానికి నష్టాన్ని మా కష్టాన్ని తెచ్చేదిగా ఉండకూడదు। కొన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన పాత్రికేయ మిత్రులు కొంతమంది మంత్రుల కార్యాలయాలు లేకపోతే ఇతర దగ్గర ఒకేసారిగా చాలా మంది వచ్చి అక్కడ కూర్చొని అక్కడ ఉన్న జరగని వాటిని జరిగినట్టుగానో లేకపోతే జరిగితే బాగుంటుందని కొంతమందిని పాసులు ఇచ్చి తీసుకొచ్చి లోపలికి తీసుకొచ్చి అనవసరమైన రాద్ధాంతాలను సృష్టించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు। మరి ఇట్లాంటి వాటిని ఎట్లా నియంత్రించాలనో మీరే నిర్ణయించి మీరే వాటిని ఏదో ఒక రకంగా ఒక కొలిక్కి పట్టుకురావాలి। అసెంబ్లీలో పాసులు ఇచ్చినా కూడా అవసరానికి మించి వాళ్ళే వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెడితే కూడా గుర్తింపు పొందిన జర్నలిస్టులకు కుర్చీ దొరకదు। వాడు యూట్యూబ్ అంటాడు, వాడు ఆ ట్యూబ్ అంటాడు, వాడు యూట్యూబ్ అంటాడు, వాడు వచ్చి మొదటి సీట్లలో కూర్చుంటాడు। వాళ్ళు ఏం అడుగుతారో వాళ్ళకి మేము ఏం చెప్పాలో మాకు అర్థం కాదు। ఇది మాకే కాదు మీకు కూడా నాకు తెలిసి ఒకప్పుడు నేను చాలామంది జర్నలిస్ట్ మిత్రులు నాకు ఉన్నారు। సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రాగానే లేచి కూర్చొచ్చి వీళ్ళు వెనక్కి పోయి కూర్చునేటోళ్ళు। మేము పత్రికా సమావేశం పెడితే కూడా ఒకవేళ డెస్క్ ఇన్ఛార్జీలు లేకపోతే మీ దాంట్లో సీనియర్ జర్నలిస్టులు వస్తే వేరే సంస్థకి సంబంధించిన జర్నలిస్ట్ వస్తే కూడా లేచి జూనియర్స్ లేచి ముందు వరుస వాళ్ళకి ఇచ్చి వీళ్ళు వెనక్కి పోయేటోళ్ళు। ఇప్పుడు విపరీతం ఎట్లయిపోయింది అని అంటే అసలు కంటే కొసరోళ్ళది ఎక్కువైపోయింది। ఎవరిది ఏ ట్యూబో తెలుస్తలేదు మాకు। ఇక ఆ ట్యూబ్లో ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏది పడితే అది మాట్లాడితే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏమన్నా అంటే చూసిరా జర్నలిస్టుల మీద దాడి అని। జర్నలిస్ట్ అనే పదానికి డెఫినేషన్ ఏందో మీరు డిసైడ్ చేయండి। మేము ఎవరిని జర్నలిస్ట్గా చూడాలో మీరు చెప్పండి। ఎవరు దోస్తే వాడు ట్యూబ్ పెట్టుకొని ఆ ట్యూబ్లో పెట్టుకొని వాడు మెడలో పట్టేసుకొని మెడలో ఇది కట్టుకొని వాడు నేను ట్యూబ్కో జర్నలిస్ట్ అని బయలుదేరితే వాళ్ళు వివరించే విధానాన్ని బట్టి ప్రజలు వివరిస్తారు। ఏది పడుతుంది మధ్యలోనే అడ్డం దొడ్డం మాట్లాడి ఏదైనా ఏమన్నా అంటే చూసిరా జర్నలిస్టుల మీద। సో ఈ విధానానికి ఎక్కడో ఒక దగ్గర పులి స్టాప్ పెట్టాలి। దీన్ని ఆలోచన చేయాల్సింది మీరే। ఎందుకంటే ఇంతకంటే పెద్ద సందర్భం నాకు దొరకదు మీకు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానీ ప్రజాప్రతినిధిగా మేము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని మీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఇంతకంటే మంచి అకేషన్ ఏముండదని నేను భావిస్తున్నా। అక్రిడేషన్ కార్డుల గురించి పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు। ఇద్దరు శ్రీనివాసరెడ్డి స్క్వేర్ ఈరోజు మీ సమస్యల్ని మీ ముందర పెట్టారు। నిజమైన జర్నలిస్టును ఒక్కరిని కూడా అగౌరవపరచాలన్న ఆలోచన కానీ వాళ్ళకి అక్రిడేషన్ కార్డులు కానీ ఆరోగ్య భద్రత కార్డు కానీ ఇంటి పట్టాల విషయంలో కానీ మీకు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా చూసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను మీకు మాట ఇస్తున్నా। కానీ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటున్న అనవసరమైన రాద్ధాంతాలను నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది। మీరు డిఫైన్ చేయండి ఎవరిని జర్నలిస్ట్గా మేము గుర్తించాలి, ఆ జర్నలిస్ట్కు ఉన్న ఎథికల్ లైన్ ఏంది, ఏ హద్దు దాటకుండా జర్నలిస్టు ఉండాలి, ఆ జర్నలిస్టు హద్దు దాటి వివరించినప్పుడు ఎదురుగున్నోడికి శనికావేశానికి లోనైనప్పుడు జరిగే
పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి, వీటన్నిటిని కూడా మనము ఆలోచన చేసి ఒక పరిష్కారం చూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పదలుచుకున్నా. ఈరోజు సిద్ధాంతాలు రాసుకోవాల్సిన పత్రికలు ఇష్టారాజ్యంగా అసలు ఏ భాష వాడాలనో జర్నలిస్టులకు కూడా కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి కదా. అసెంబ్లీలో మేము ఏదైనా మాట్లాడితే రికార్డుల నుంచి తొలగించడమనో, లేకపోతే ఈ భాషకు పద్ధతి లేదనో మనం పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో మనం అనుకుంటున్నాం కదా. మరి పత్రికలకు జర్నలిస్టులకు ఏ భాష రాయాలి, ఎలాంటి భాష వాడాలి, ఏ పదప్రయోగం, హోదాని బట్టి రేవంత్ రెడ్డి మీకు నచ్చకపోవచ్చు యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్, కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఈజ్ తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్. తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది ఒక గౌరవప్రదమైన హోదా. ఒక జర్నలిస్ట్ అనేది ఒక గౌరవప్రదమైన హోదా. వ్యక్తితో నీకు నచ్చవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు, ఆ హోదా మనమందరు ప్రజలందరూ కలిసి ఇస్తే వచ్చిన హోదా. ఆ హోదాని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ఆ పత్రికలకు కానీ, ఆ పత్రిక యజమానుల ముసుగుల్లో ఉన్న రాజకీయ పార్టీ నాయకులకు కానీ ఉండదా? వాళ్ళకి లేనప్పుడు మేమెందుకు పాటించాలా అనేది నా ప్రశ్న. వాళ్ళు ఆ బాధ్యతను మరిచి అసభ్యంగా వ్యవహరించి అసందర్భమైన అంశాలను ప్రస్తావిస్తే న్యాచురల్గా రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఆ రియాక్షన్ని మొత్తం జర్నలిస్టులకు మీరు ఆపాదించుకోకండి. దయచేసి వేదిక మీద నుంచి మీడియా మిత్రులకు నా విజ్ఞప్తి ఒక్కటే, ప్రజల కోసం ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజా సమస్యల్ని వెలికితీసే జర్నలిస్టులు ఒక వర్గం అయితే, కేవలం రాజకీయ పార్టీ యజమానిని రక్షించడానికి, ఆ యజమానికి మొత్తం వ్యవస్థను అప్పచెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళు ఇంకొక కోవా. ఈ రెండింటిని మీరు విడదీయండి. ఈ రెండింటిని కలగాపులగం చేయడం ద్వారా నిజమైన జర్నలిస్టుకు నష్టం జరుగుద్ది. ఆ నష్టం జరగకుండా ఉండడానికి అవసరమైన ప్రణాళికలు మీరు సిద్ధం చేయండి అని చెప్పి నా వైపు నుంచి విజ్ఞప్తి. అసెంబ్లీలోకైనా లేకపోతే సెక్రటేరియట్లోకైనా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకైనా మిమ్మల్ని అనుమతించడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. దానికి సరైన కార్డు తీసుకోండి, సరైన విధానాన్ని తీసుకొని రండి. నేను మా మంత్రి గారికి సూచన చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ స్టెప్ అదే. సెక్రటేరియట్కి ఎవరు రావాలి, ఎవరికి. हैदराबाद में हालिया तोड़फोड़ की घटनाओं में स्थिति को गंभीर बना दिया है। एफटीएल क्षेत्र में जहां गरीब और असहाय लोगों के घरों को बिना किसी पूर्व सूचना या मुआवजा के ध्वस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई की वजह से कई परिवार भारी बारिश के बीच सड़कों पर छोड़ दिया गया है। यह वो लोग हैं जिन्हें वर्षों की मेहनत से अपने मकान बनाए थे, लेकिन उन्हें अब अपने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ बारिश में पर्दों और चादरों में सिर छुपाने को मजबूर होना पड़ रहा है। हैदराबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां भैंसा की एक युवा लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाले एक युवक ने नारायणगुरा के ओयो होटल में एक कमरे में 20 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती की थी, जिसे उसने हैदराबाद आने पर उकसाया। जब लड़की शहर पहुंची तो युवक ने उसे नारायणगुरा के होटल में रखा। इस दौरान उसे बाहर जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने व्हाट्सएप पर अपने माता पिता को अपनी वर्तमान लोकेशन भेजी। माता पिता ने तुरंत पुलिस और शी टीम से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को होटल से कमरे से बरामद किया और युवक को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक गंभीर सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पवन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वो स्पीड वो ड्राइवर है, वो ड्राइवर है वो काट के लेनो तो मोटा ಅದು ಏನಂತ ಕಾಕು ನಾನು
अरे पवन चला सर वो किस्मत है पूरा है किस्मत है तो बिल्कुल कोड़ा लाते हैं तो कोड़ा लाते तो ना मानते वो जो तगरवात बोलता है रोड वाले ಅದು ಬೆಲೂನ್ ಪೇಶಿ ಅಂತ ಬೇಕು ಬೋನೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು बस बोट नलवाता ఈడ కలిగి ఈడ లోపల పడ్డది. ఇది మన బ్రిడ్జే, ఇది మన బ్రిడ్జే. सामे नंदुको निवेको बताते पर पड़पुड़ इस्तार जगह इक्कन मत है चले मत इत्ते पवन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मत तो स्पीड दे वो स्पीड हां मत खत भाई मत वो ड्राइवर है ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಮೂಡಿ ಗೋಲ್ ಕಾಟಿ ಬೆಲೆ ನೋಟ ಮೋಟ ಅದು ಇದನ್ನ ಕಾಕು ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ अरे पवन चला सर वो किस्मत है पूरा है किस्मत है तो बिल्कुल कोड़ा लाते हैं तो कोड़ा लाते तो ना मानते वो जो तगरवात बोलता है रोड वाले ಅದು ಬೆಲೂನ್ ಪೇಶಿ ಅಂತ ಬೇಕು ಬೋನೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು बस बोट नलवाता विशाखापट्टनम, विजयनगरम और गोदावरी जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ आ गया है और स्थानीय स्तर पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का केंद्र उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे आंध्र प्रदेश उत्तरी क्षेत्र और तेलंगाना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 11 सितंबर तक इस क्षेत्र में लगातार बारिश की आशंका जताई गई है। शहरी इलाकों में जल जमाव का खतरा भी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और शिवसेना ने दक्षिण मुंबई में के मुसलमान के बहुल्य इलाकों में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। बैखल्ला विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने हाल ही में मदनापुरम, भायकल्ला और नागपारा के इलाकों में महिलाओं के बीच बुर्का बांटा गया है और महिलाओं को सुविधा के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। यह कदम विशेष महत्व का है क्योंकि भाजपा और शिवसेना पर अक्सर मुसलमानों के रहन सहन, खाने पीने और पहनने के तरीकों पर आपत्ति जताने का आरोप लगता है और बुर्का को भी निशाना बनाया जाता है। हाल ही में भाजपा विधायक नितेश राणे की मुस्लिम विरोधी बयानबाजी और मुख्यमंत्री शिंदे के गुस्ताखे रसूल रामगीर के समर्थन में व्यापक आक्रोश पैदा किया है। ऐसे में शिवसेना शिंदे का यह कदम चुनावी दृष्टिकोण से खास महत्व रखता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर टेक्सास पहुंचे हैं, जहां उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की। राहुल गांधी ने इस अवसर पर भारत की राजनीतिक में नफरत के माहौल का उल्लेख किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से प्यार, भाईचारगी और राजनीति की शुरुआत हुई है। उन्होंने आरएसएस के भारत को एक विचारधारा मानने के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि भारत विभिन्न विचारधाराओं का देश है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि जाति, भाषा, धर्म, परंपरा
या इतिहास के भेदभाव के बिना सभी को सपने देखने और भाग लेने का अधिकार है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का भी उल्लेख किया और कहा कि यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी जिसमें भारत के करोड़ों लोगों ने महसूस किया कि पीएम नरेंद्र मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept an attack. हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूचना भी जारी कर दी है। इस सूची में पहलवान विनेश फोगाट को जोलाना से टिकट दिया गया है, जो इस समय हरियाणा में प्रमुख चेहरा बनकर सामने आई है। विनेश फोगाट ने अपने ससुराल बख्ता खेरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सराहना की और कहा कि वह उनकी बहुत इज्जत करती हैं। फोगाट ने कहा कि पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा कि राहुल गांधी सड़कों पर हैं, वह हर लोगों से बातचीत करते हैं और उनका दर्द जानने की कोशिश करते हैं। प्रियंका दी ने एक बात बोली थी मुझे
कि हिम्मत नहीं हारना है। जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की। सिर्फ एक कुश्ती के उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई। उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी को पूरा करें, और जब वो कमी को पूरा करेंगे तो मेरे लिए मेरे ओलंपिक मेडल से भी बड़ी खुशी की बात होगी। से इतना जबरदस्त काफिले का सम्मान दिया, उसकी अरेणी बता। मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं। हर एक जनमानुष के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा। ये मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। मैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को घटते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज की जरूरत या किसी भी चीज, जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं विनेश, हार नहीं माननी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना है कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ कुश्ती की वजह से हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो बढ़े ही बढ़े इस हमारे जींद के एरिया में, लेकिन हर एक वो स्पोर्ट्स बढ़े, और जब भी ओलंपिक्स में नाम आए तो जींद की धरती का ऐसा नाम आए कि यहाँ से जो एथलीट निकले हैं वो कहीं नहीं है पूरे देश में। मैं ऐसा एक सपना संजोना चाहती हूँ, और आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं। जो भी बेटी छोटा सपना देखती है उसको बड़ा करने में आपका सबसे अहम योगदान रहेगा उसमें। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर आप उसको स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में डालोगे। बस आप उसका सपोर्ट करो, उसको आशीर्वाद दो। हम जैसे खिलाड़ी जो बैठे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो बातचीत करने से ही कई बार हौसला बढ़ जाता है बच्चों का, किसी भी चीज की जरूरत हो हम पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी आलोचना की है। मुफ्ती ने दावा किया है कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और वह इसका जवाब वोट से देंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी निराश हो चुके हैं। अनंतनाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुफ्ती मोहम्मद सईद के विजन को लोगों ने समझ लिया है। पीडीपी का प्रदर्शन सभी के सामने है, हमने काम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी 40 साल के शासन में भी ऐसा नहीं कर सकी है। वो लोग समझ चुके हैं कि जो कार्रवाई, जो कारकर्दगी पीडीपी की बहुत कम अरसे में रही, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40-45 साल में भी रही। पीडीपी ने साउथ कश्मीर को लेके अगर आप देखेंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, सड़कों का जाल बिछाया, खासकर लोगों को जो उसको जुल्म था, सितम था, पोटा का, टास्क फोर्स का, इरफान का, आर्मी का, उससे नजात दिला दिया लोगों को। इसलिए लोग समझते हैं अगर आज वोट की इज्जत है, वो इज्जत इसलिए कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती,
तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती जी। तो ये लगातार निशाना बना रही है यहाँ की इलाकाई पार्टियों को, और टीम खाजारी राज को लेकर जो है काफी बयान दे रही है, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेटेड है, उनको पता है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले किए हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग उनसे बहुत नाराज हैं, और लोग जो है बैलेट का इस्तेमाल करके उनको जवाब देना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। लगातार अलायंस की जानिब से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो अलायंस पार्टियां नहीं बन चुकी है वो बराह रास्त बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। वो तो आपने सुना ही होगा कि रविंद्र राणा साहब ने क्या कहा कि जिस वक्त दिल्ली से बीजेपी के लोग हमारे दरवाजे पे खड़े थे 3 महीने की सरकार बना, तो दिल्ली। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए ओलंपिक एथलीट बजरंग पुनिया को व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुनिया ने सोनीपत के बहालगढ़ थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी के अनुसार पुनिया की शिकायत पर जल्द कार्रवाई की जा रही है। बालगढ़ पुलिस स्टेशन के SHO मदन सिंह ने बताया कि धमकी भरे संदेश में पुनिया को कांग्रेस से इस्तीफा देने या गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। बालगढ़ में शिकायत दी थी, तो उसको किसी बार के नंबर से धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है, उसकी शिकायत ले ली है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई जारी। सर क्या शिकायत दी गई है बजरंग द्वारा, बता सकते हैं? किसी अननोन आदमी ने धमकी दी है, अभी ये जांच का विषय है, इस पर जांच जारी। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पत्रकारों पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कुछ पत्रकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की तरह करते हैं काम। तेलंगाना के आदिलाबाद में सड़क हादसा, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, टेक्सास में भारत की राजनीतिक और भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव, विनेश फोगाट ने चुनाव अभियान की शुरुआत की। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला। 1 TV हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।